اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear student and dear listener. First of all, welcome to my channel Education Group. In this video we discuss about last type of tenses, and in this video we elaborate kind of future tense, future perfect tense. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، جسے ہم اردو میں فعل مستقبل مکمل کہتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام ایجوکیشنل ویڈیوز باوقت ملتی رہے. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے لیسن. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے میرے یہ لیکچرز PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ایجوکیشنل ویڈیو کو. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کی تعریف کہ کیا ہوتا ہے فعل مستقبل مکمل. آئیے سیکھتے ہیں. یہ فعل مستقبل میں کسی کام کی تکمیل ایک خاص وقت میں پورے کرنے کو ظاہر کرتا ہے. یہ فعل مستقبل میں یعنی کہ آنے والے زمانے میں کسی کام کی تکمیل ایک خاص وقت میں پورے کرنے کو ظاہر کرتا ہے. کلیئر؟ اب ہم سیکھیں گے یہاں پر کہ اردو میں پہچان، کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کسی بھی اردو کے فقرے کے آخر میں اگر یہ الفاظ آ جائیں تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل مستقبل مکمل کا ٹینس ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں. جیسے کسی بھی فقرے کے آخر میں اگر چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، کسی بھی فقرے کے آخر میں اگر گا، گی، گے آ جائے تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ ایک فیوچر کا ٹینس ہے. کلیئر؟ اب ہم اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. مثلاً وہ میچ جیت چکا ہوگا. وہ میچ جیت چکا ہوگا. اس کے آخر میں ہم نے دیکھا چکا ہوگا آ گیا تو ہمیں فوراً پہچان ہو گئی کہ یہ فعل مستقبل مکمل کا سینٹینس ہے. کلیئر؟ نیکسٹ. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کون سی چیزیں یاد رکھنی ہیں اور وہی چیزیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں یوز ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں ریممبر رکھنی ہیں. یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. پہلے ٹیبلز میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے. سیکنڈ ٹیبل میں آپ کو ہیلپنگ ورب جسے ہم HV بھی کہتے ہیں، اور لاسٹ میں آپ کو ورب نظر آئیں گے. ورب کسے کہتے ہیں؟ ورب از آ ایکشن ورڈ. ورب از آ ایکشن ورڈ، اسے ہم کہتے ہیں ورب. اگر ورب نہیں سیکھے، نہیں پڑھے کبھی، تو لنک اوپر آئی بٹن میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، وہاں پر آپ جا کر ایزیلی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر میں نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اگر سبجیکٹ میں آئی اور وی آ جائیں تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول یا شیل کا استعمال ہوگا. یعنی کہ ول اور شیل میں سے ایک الفاظ کا استعمال ہوگا.
आई और वी में। आगे चलकर मैं ये भी बताऊंगा कि आई किसके साथ इस्तेमाल करना है, यानी कि कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ आई का इस्तेमाल करना है और कब करना है, और वी का भी मैं आगे ही चलकर बताऊंगा। क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए हमने इसके साथ हैव का भी इस्तेमाल करना है। क्लियर? अगर सब्जेक्ट में यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, अगर ये चीज़ें सब्जेक्ट में आ जाएं तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करना है। इन तमाम सब्जेक्ट के साथ हमने सिर्फ़ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करना है, और क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसलिए हमने हैव का भी इस्तेमाल करना है। और वर्ब की जो इस टेंस में फॉर्म यूज़ होगी वो होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे मैंने V3 के नाम से ज़ाहिर किया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है? ये टेबल्स आपने लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं टेबल की मदद से हम आगे सेंटेंसेस बनाने का तरीका भी सीखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे हाउ वी मेक आ सेंटेंसेस, कि कैसे हम जुमले बना सकते हैं। आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस, जिन्हें हम उर्दू में सादा जुमले भी कहते हैं। अगर इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आ जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आप सब्जेक्ट देखेंगे, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब जिसे हम HV भी कहते हैं, और लास्ट में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट में आई और वी हों तो हमें पता है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे, विल और शैल, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने हैव यूज़ करना है, एंड लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे मैंने वर्कड यूज़ की है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, यू, दे, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट में आ जाएं तो हेल्पिंग वर्ब हमें पता है विल का यूज़ होगा, और हैव हमने इस टेंस में यूज़ करना है, और लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, वर्कड। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका, कि कैसे हम सवालिया जुमला एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रूल से बना सकते हैं। आइए सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, नेक्स्ट टेबल में आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे, एंड नेक्स्ट टेबल में आपको हैव का यूज़ नज़र आएगा, और लास्ट में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नज़र आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल हों, यानी कि विल और शैल हों हेल्पिंग वर्ब में, तो हमें पता है, हमने रिमेंबर में देखा था कि विल और शैल के साथ कौन से सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, कौन से होते हैं आई और वी, और इसके साथ हमने हैव का भी इस्तेमाल करना है, एंड लास्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है वर्कड, एंड लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव
सेंटेंसेस हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ और सिर्फ विल आ जाए तो हमें पता है सब्जेक्ट में ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं और प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट में आ जाएं तो हमें पता है इसके साथ भी हमने हैव का इस्तेमाल करना है और लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर वर्कड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। नेक्स्ट सीखेंगे यहाँ पर मनफी जुमले बनाने का तरीका कि कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मनफी जुमले बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव का यूज़ नज़र आएगा और लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ नज़र आएगा। अगर सब्जेक्ट में आई और वी हों तो हमें पता है इनके साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, विल और शैल। एंड नॉट का यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि मनफी जुमले हैं और इसके साथ हमने हैव का भी यूज़ करना है और लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, जैसे मैंने वर्कड यूज़ किया है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, अगर ये तमाम चीज़ें नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएं सब्जेक्ट में तो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, विल यूज़ होगा और नॉट हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करना है और हैव हमने इसी ही टेंस में यूज़ करना है और लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज़ करना है, जैसे मैंने वर्कड यूज़ किया है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने ये PDF में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर सकें। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम सवालिया और मनफी जुमले कहते हैं, इनको बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने 4 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, नेक्स्ट टेबल में आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे और नेक्स्ट में आपको नॉट प्लस हैव का यूज़ नज़र आएगा और लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल नज़र आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल हो तो हमें पता है सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, आई और वी होंगी और उसमें हमने नॉट हैव का यूज़ करना है और लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने वर्कड यूज़ की है एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी इसी में शामिल है। अगर हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ और सिर्फ विल आ जाए तो हमें पता है, हमने रिमेंबर में याद किया था कि हेल्पिंग वर्ब में अगर विल होगा तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, जैसे ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं। अगर सब्जेक्ट में ये तमाम चीज़ें आ जाएं तो हमें पता है इसके साथ भी हमने नॉट का इस्तेमाल करना है और हैव का और लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर मैंने वर्कड यूज़ की हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है। क्लियर? यहाँ तक तो थे
ہم کیسے کسی بھی فارم کے ساتھ ایک جملہ بنا سکتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے یہ سیکھا. اب ہم سیکھیں گے کہ یہ عموماً کون کون سی جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں. آئیے سیکھ لیتے ہیں. ایک خاص کام کی تکمیل مستقبل میں ایک خاص وقت میں ہوگی. ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں. یہ I will have taught Hamlet by the next. یعنی کہ اب اس کے بعد میں ہیملیٹ پڑھوں گا. ہیملیٹ کوئی ناول ہے تو اسے میں نے پڑھنا ہے, تو میں کہوں گا کہ I will have taught Hamlet by the next. کلیئر؟ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی. جیسے before the doctor comes he will have recovered. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض صحت یاب ہو گیا. یعنی کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض خطرے میں تھا تو وہ خطرے سے ریکور یعنی کہ بحال ہو گیا. کلیئر؟ سو today we complete in this video future perfect tense. Thanks for watching and don't forget subscribe, like, comment and must share. We meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.